بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس پر ہم سر اٹھا کر فخر کر سکتے ہیں، اور ایسے ایسے نامور گوہر دامن اسلام میں موجود ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کی بنیادوں کو اتنا مستحکم کر دیا کہ کسی میں ہمت نہیں کہ اسلام کی طرف دیکھ بھی سکے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے کارناموں پر بات کریں گے جس کی وجہ سے آج برصغیر میں اسلام موجود ہے۔ میری مراد تاریخ کے ایک چمکتے ہوئے ستارے جناب محمد بن قاسم سے ہے۔ یہ محمد بن قاسم کے متعلق میری دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں نے محمد بن قاسم کی زندگی پر ایک ویڈیو بنائی ہے اور اپنے یوٹیوب چینل اردو زبان والے پر اپلوڈ بھی کر دی ہے۔ اس ویڈیو میں میں محمد بن قاسم کے ان کارناموں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جن کی وجہ سے وہ عالم اسلام کی آنکھوں کے ستارے بن گئے، اور صرف ستارے نہ بنے بلکہ ستارے بن کے ایسے چمکے کہ تا قیامت عالم اسلام کو ان پر فخر و ناز رہے گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو متواتر ملتی رہیں۔ فتح مکران کے موقع پر تصادم۔ راجہ داہر حاکم سندھ نے مسلمانوں کے ساتھ خواہ خواہ کی دشمنی شروع کر دی تھی۔ 22 ہجری میں مسلمان مجاہد ایران فتح کرنے کے بعد مکران پر حملہ آور ہوئے تو سندھیوں نے ان کی بھرپور مخالفت کی۔ مسلمانوں نے سندھ اور مکران کے متحدہ لشکر کو شکست دی، لیکن اس وجہ سے مسلمانوں اور حکومت سندھ کے درمیان اناد کا بیج بویا گیا۔ باہمی دشمنی کی فضا کو راجہ داہر نے برقرار رکھا، اور جب مکران میں ایک سردار محمد اولافی نے مکران کی گورنر کو قتل کر کے سندھ کی راہ لی تو راجہ داہر نے اسے اپنے ہاں پناہ دی اور اپنی فوج میں اسے عہدہ بھی دیا۔ راجہ داہر چونکہ معتصب ہندو اور برہمن زادہ تھا، اس لیے اس نے بدھ مت کے پیروکاروں پر بے پناہ ظلم ڈھائے اور بزور شمشیر ان کو مٹانے کی پالیسی پر عمل کیا۔ مظلومین میں جاٹ اور لوبان قومیں بھی شامل تھیں جن کو راجہ داہر کے باپ چچ نے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ اصلی کے بجائے مصنوعی تلوار اپنے پاس رکھیں، قیمتی کپڑے، ریشم، مخمل اور شال استعمال نہ کریں، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کریں، ننگے سر اور ننگے پیر رہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنا کتا ساتھ رکھیں۔ راجہ داہر نے بھی ان پابندیوں کو قائم رکھا۔ سندھ کے یہ مظلوم طبقے مسلمانوں سے مدد کے طالب تھے۔ سندھ قدیم زمانے میں ساسانی حکومت کا حصہ رہا جو اب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی، اس لیے مسلمان اسے اپنی حکومت کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ قرار دیتے تھے۔ راجہ داہر کا ڈاکوؤں کی سرکوبی کرنے سے انکار۔ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر لنکا میں آباد ہو گئے تھے۔ لنکا کے راجہ کے حجاج کے ساتھ بہت خوشگوار تعلقات تھے۔ اس نے ان تعلقات کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور وفات شدہ تاجروں کی بیوی بچے ایک جہاز میں سوار کر کے بصرہ روانہ کر دیے، لیکن جب ٹیبل کے قریب پہنچا میدھ قوم کے کچھ ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت نے حجاج کے نام دعائی دی۔ اس واقعے کی اطلاع جب حجاج کو ملی تو اس نے فوری کارروائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے راجہ داہر کو سامان واپس کرنے، یتیموں اور عورتوں کو رہا کرنے اور ڈاکوؤں کو اسلامی حکومت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے بڑا روکھا جواب دیا اور کہا ڈاکوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہم ان کی تلاش کر سکتے ہیں۔ جہاں تک قیدی عورتوں کا تعلق ہے انہیں تم خود ہی چھڑانے کی کوشش کرو۔ حجاج یہ جواب سن کر آگ ببولا ہو گیا اور فوراً فوجی کارروائی کا انتظام کیا، اور اس طرح راجہ کی ہر دھرمی نے عربوں کو سندھ پر حملہ آور ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس حملے کی دوسری وجہ محمد بن حارث اولافی اور اس کے 500 ساتھیوں کو امویوں کے حوالے نہ کیا جانا بھی بتایا جاتا ہے، مگر اس بات کا تاریخ میں ہمیں کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا۔ حجاج کے مقررہ کردہ مالیاتی عامل جس کا نام سعید تھا نے صفحوی بن لام الحمامی کو قتل کر دیا۔ جواب میں اولافی قبیلے والوں نے سعید کو قتل کر دیا۔ حجاج نے اولافیوں کے کئی لوگوں کو قتل کروایا۔ اس کے علاوہ حجاج نے اپنے نئے گورنر کو کہا اولافیوں کو تلاش کرنا اور کسی طرح بھی انہیں قبضے میں کر کے سعید کا انتقام لینا۔ اسی وجہ سے اولافی قبیلے کے لوگ بھاگ کر راجہ داہر کے ہاں پناہ لینے آ گئے۔ واقعات۔
उबैदुल्ला और बदील की मुहिम्मात की नाकामी। हुजाज बिन यूसुफ ने राजा दहर के नामकूल रवैये की वजह से 710 ईस्वी में अब्दुल्ला की क़ियादत में एक फौज भेजी, लेकिन इसे शिकस्त हुई। अगले साल दूसरी मुहिम बदील के सरकर्दगी में भेजी गई, लेकिन इसे भी राजा दहर के बेटे ने शिकस्त दी। इन दोनों मुहिम्मात की नाकामी के बाद मुस्लिम हुकूमत के वक़ार को बहाल करने के लिए सिंध की फतह नागुज़ीर हो गई थी। इसलिए हुजाज बिन यूसुफ ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से इसकी इजाजत हासिल की। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का भतीजा था। बाज़ रिवायत के मुताबिक चचेरा भाई था। वो इस वक्त फारस का गवर्नर था। 17 साल का कम उम्र नौजवान होने के बावजूद इंतहाई होशियार और काबिल जर्नैल था। हुजाज बिन यूसुफ ने इसकी निगरानी में 12,000 फौज तैयार की और सुई धागे से लेकर मुंजनीक तक जरूरत की हर चीज का सामान मुहैया किया। भारी सामान एक बहरी बेड़े के जरिए रवाना किया गया। हुजाज बिन यूसुफ ने गुज़िश्ता मुहिम्मात से सबक लेते हुए बड़ी एहतियात से काम लिया। फौज की असल कमान इसके अपने हाथ में थी और मोहम्मद बिन कासिम को हिदायत की गई कि वो फौजी कार्रवाई के दौरान मरकज की हिदायत पर अमल करे। 712 ईस्वी में बैबल की फतह। मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते सिंध की तरफ रवाना हुए और बंज, गवार और अरमन बेला को फतह करते हुए बैबल पहुंचे। बहरी रास्ते से रवाना होने वाली फौज यहीं उनसे आ मिली। बैबल की बंदरगाह कराची के करीब थी। अहले शहर कला बंद होकर बैठे रहे। कई माह मुआसरा जारी रहा, लेकिन शहर फतह होने पर ना आता था। आखिरकार हुजाज बिन यूसुफ की हिदायत के मुताबिक मुंजनीक को एक खास जाविये पर नस्ब करके शहर पर संगबारी शुरू की गई। इसी सिलसिले में मोहम्मद बिन कासिम को मालूम हुआ कि जब तक शहर के बस्त का गुंबद महफूज है, शहर वालों के हौसले बुलंद रहेंगे। चुनांचे मोहम्मद बिन कासिम ने खुसूसी तौर पर गुंबद को निशाना बनाया। गुंबद गिरने से अहले शहर के हौसले पस्त हो गए और राजा दहर का हाकिम शहर छोड़कर भाग गया। मोहम्मद बिन कासिम ने शहर पर कब्जा करके एक मस्जिद तमीर करवाई। उन्होंने दुश्मनों को मरऊफ करने के लिए तमाम मुखालिफ लश्कर को तय तेक कर दिया और बुद्ध मत के पुजारियों और मुसलमान कैदियों को जालिम हिंदुओं से निजात दिलाई। इससे बुद्ध मत के हामी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की हिमायत करने लग गए। नेरवान की आबादी का हाकिम बुद्ध मत का पैरोकार था। वो मुसलमानों से खाइफ भी था और इन्हें अपना निजात दहिंदा भी समझता था। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम के नेरवान पहुंचने से पहले ही नेरवान के हाकिम ने हुजाज से माननामा मंगवा लिया था। चुनांचे इस्लामी लश्कर के पहुंचने पर इसने माननामा पेश किया। सालाल लश्कर की खिदमत में तहाइफ पेश की और सिंध की तस्कीर के लिए काबिले कदर मशवरे दिए। इस्लामी लश्कर के लिए इसने रसद का भी इंतजाम किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भी इसकी हर तरह कदर अफजाई की। शहर में एक मस्जिद तमीर की गई और मुसलमानों की कलगुनी बसाई गई। सिविस्तान की फतह। नेरवान के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिविस्तान की तरफ बढ़े। नेरवान का राजा रहनुमाई के लिए साथ था। रास्ते में बहरी की बुद्ध आबादी ने इताअत कबूल कर ली। सिविस्तान पर राजा दहर का भतीजा बजहरा हुकूमत करता था। अगरचे यहाँ के अवाम मुसलमानों की इताअत कर लेने पर तैयार थे, लेकिन राजा मुकाबला करना चाहता था। ताहम जब मुकाबला हुआ तो शहर की आबादी ने इसका साथ न दिया और वो शहर छोड़कर भाग गया। शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। सीसम की फतह। राजा बजहरा सिविस्तान से भागकर सीसम चला गया, जहाँ का राजा बुद्ध मत का पैरोकार था और मुसलमानों से लड़ना ना चाहता था। इसने मुसलमानों की खिदमत में हाजिर होकर इताअत कबूल कर ली। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी इज्जत अफजाई की, जिससे अहले सिंध बहुत मुतासिर हुए और इसकी रियासत का इंतजाम दोबारा इसी को सौंप दिया गया। इसने तस्खीर सिंध पर तावन का दावा किया और आइना मुहिम्मात में साथ रहा। राजा बजाहिर को, जो अभी तक सीसम में ही मुकीम था, वहां से निकाला ना जा सका। इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने सीसम पर हमला कर दिया। राजा बजाहिर ने दूसरे सरदारों के साथ मिलकर मुकाबला किया और सभी मारे गए। सीसम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। बाकी मानदा फौज ने मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली। अशेहार की फतह। सीसम की फतह के बाद हुज्जाज की तरफ से हुक्म मिला कि राजा दहर के पाया तख्त पर हमला किया जाए और खुद राजा दहर से मुकाबला किया जाए। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम नेरवान वापस पहुंचे और राजा दहर के पाया तख्त पहुंचने की तैयारियां करने लगे। चुनांचे उन्होंने अशेहार के किले पर हमला किया, जहां लोगों ने खंदक खोद कर जबरदस्त हिफाजती इंतजाम कर रखे थे। एक हफ्ते के सख्त मुआसरे के बाद अहले कला ने इताअत कबूल कर ली और मोहम्मद बिन कासिम उनसे हुस्न सलूक से पेश आए।
राजा मौका की इताअत। मोहम्मद बिन कासिम के लिए दरिया अबूर करना मुश्किल था जब तक इन्हें सोरता के हाकिम राजा मौका का ताबन हासिल न होता। चुनांचे उन्होंने मौका को खत लिखकर अतायत इस्लाम कबूल करने की दावत दी और इसे अपने इलाके के अलावा कुछ का हुक्मरान भी बनाने का वादा किया। राजा ने लिखा कि मेरी दाहर के साथ कराबतदारी है, इसलिए खुल्लम खुल्ला अगर मैं आपका साथ देता हूँ तो खानदान की नाक करती है। मैं अपने 20 सरदारों के साथ लड़की की शादी करने के बहाने साकुड़ जाता हूँ, आप 1000 सिपाह भेजकर मुझे गिरफ्तार करवा लीजिए। चुनांचे मोहम्मद बिन कासिम ने मौका को गिरफ्तार करवा लिया और इस तरह 20 ठाकुर यानी सरदार गिरफ्तार हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा मौका की इज्जत अफजाई के लिए इनके रिवाज के मुताबिक इन्हें सरे दरबार कुर्सी पर बिठाया और खिल्लत फाखरा से नवाजा ताकि तालीफ कल्ब हो सके। राजा दाहर से मुकाबला। मोहम्मद बिन कासिम चाहते थे कि दरियाए सिंध को अबूर करके राजा दाहर का मुकाबला करें, क्योंकि दाहर ने मौका की इताअत से बरहम होकर एक फौज भेजी थी जो दरियाए सिंध को अबूर करके मुसलमानों के मुकाबले पर आई, लेकिन शिकस्त खाकर भाग गई। मोहम्मद बिन कासिम ने एक नौ मुस्लिम को राजा दाहर के दरबार में सफीर बनाकर भेजा जो दैबल का एक मुअज़्ज़िज़ शख्स था और एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखता था और राजा दाहर इसे अच्छी तरह जानता था। उसने राजा दाहर के दरबार में शाही अदाब बजा लाने से इनकार कर दिया। इस पर राजा दाहर सख्त बरहम हुआ और कहा कि अफसोस तुम सफीर बनकर आए, वरना कत्ल के सिवा तुम्हारी कोई सजा ना थी। सिफारत नाकाम हो गई। राजा दाहर अपना लश्कर लेकर दरिया सिंध के मशरकी किनारे पर खैमा जन हो गया और अपने एक सरदार को दरिया सिंध की हिफाजत पर मुतय्यन कर दिया ताकि इस्लामी लश्कर दरिया अबूर ना कर सके। इसी दौरान सिविस्तान में बगावत हो गई जिसको फरू करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को एक दस्ता रवाना करना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम के लिए बड़ा मसला दरिया अबूर करना था। दाहर ने मौका के भाई रासिल को दरिया की हिफाजत पर मुतय्यन कर रखा। मुसलमानों ने कश्तियों का पुल बनाने का इरादा किया, लेकिन दूसरे किनारे पर रासिल के सिपाही इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देते थे। बिलाखिर एक रात को मुसलमानों ने कश्तियों को दरिया के तूल के रुख पर खड़ा करके इन्हें अर्ज की रुख पर खींच दिया। राजा राशिद के जिन सिपाहियों ने मज़ामत की वो तीर अंदाजों के हाथों मारे गए और मुसलमान फौज ने दरिया अबूर करके राशिद की फौज पर भरपूर हमला कर दिया और इनके कले फहम के फाटक तक इनका ताक़ुब किया। सुबह राजा दाहर को मुसलमान फौज के दरिया अबूर करने और राशिद की शिकस्त की खबर सुनाई गई तो उसने इसे बदशुकनी करार दिया और राजा राशिद ने भी बदलते हुए हालात को भांप कर मोहम्मद बिन कासिम की अताअत कबूल कर ली। इस्लामी लश्कर पेशकदमी करता हुआ निरानी नामी गांव पर काबिज हो गया। राजा दाहर के बिल्कुल सामने वाक़या कस्बा काजी जाट में मुकीम था। दरमियान में सिर्फ एक झील थी। मौका और रासिल ने एक कश्ती के जरिए 3-3 आदमी झील के पार भेजने शुरू कर दिए, यहाँ तक के तमाम लश्कर पार जा उतरा। राजा ने अपने अहलो याल को दरावर के कले में बंद किया और खुद लड़ाई की तैयारी की। राजा दाहर 100 हाथियों, 10,000 वीराफौज सवार और 30,000 पैदल की फौज के साथ दरिया सिंध के किनारे मुकाबले पर आया। 4 दिन तक मुकाबला जारी रहा। मूज और हाथियों के सामने मुसलमानों का जोर न चलता था। आखिर 5वें दिन मुसलमानों ने पिचकारियों के जरिए आतिशगीर मादा हाथियों पर फेंकना शुरू किया, जिससे वो भाग खड़े हुए। राजा दाहर का हाथी भी मैदान से भाग खड़ा हुआ, लेकिन राजा दाहर हाथी से उतरकर प्यादा लड़ता रहा, यहाँ तक कि एक अरब ने इसका काम तमाम कर दिया। इसके मरते ही फौज किला दरावड़ की तरफ भाग गई। इस मार्के में मोहम्मद बिन कासिम की कुल फौज 15,500 थी, जिनमें 4,000 सिंधी जाट भी शामिल थे और 3,000 फौज मौका की थी। रिवाड़ की फतह। राजा दाहर के लड़के जय सिंह ने शिकस्त खुर्दा फौज को रिवाड़ में जमा किया और मुकाबले की ठानी, लेकिन इसके दोस्त ने मशवरा दिया कि रिवाड़ के बजाय ब्राह्मणाबाद ज्यादा महफूज मुकाम है, वहां जाकर मुकाबला करना चाहिए। जय सिंह तो ब्राह्मणाबाद चला गया, लेकिन राजा दाहर की बीवी रानी भाई, जो कि राजा दाहर की बहन थी और इसने इसके साथ खुद ही शादी कर ली थी। जब देखा कि कला बचाना मुश्किल है तो इसने दूसरी औरतों समेत सती की रस्म अदा की और रिवाड़ पर मुसलमानों के कदम मजबूत हो गए। बहरोर और बहलीला की फतह। मोहम्मद बिन कासिम रिवाड़ से ब्राह्मणाबाद की तरफ बढ़े। रास्ते में बहरोर और बहलीला 2 मजबूत कले पड़ते थे। मोहम्मद बिन कासिम पहले बहरोर पर हमलावर हुए और 2 माह की सख्त मुहासरे और शब रोज की जंग के बाद बहरोर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बहलीला पर हमला किया। यहाँ के लोग बददिल होकर भाग खड़े हुए और कला बासानी फतह हो गया। राजा के वजीर सी साकर की इताअत।
राजा दार का दूर अंदेश वजीर सी साकर भाग गया था कि मुसलमानों के हमले को रोकना नामुमकिन है। इसने मोहम्मद बिन कासिम के पास जान बख्शी की दरख्वास्त की और तावन का यकीन दिलाया, और वो औरतें भी पेश की जिनको कज़ाकों ने लूटा था, जिनमें एक औरत वो भी शामिल थी जिसने हज्जाज बिन यूसुफ की दुहाई दी थी और जिनकी वजह से सिंध पर हमला हुआ था। सी साकर ने खैर ख्वाही और वफादारी से मोहम्मद बिन कासिम का एतमाद हासिल कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने भी इसे अपना मुशीर खुसूसी बना लिया और इसके मशवरे से वहलीला की हुकूमत एक हिंदू नोबा के हवाले की गई। ब्राह्मणाबाद की फतह। राजा दार का लड़का जय सिंह अपनी फौज के साथ यहाँ मुकीम था। जिन दिनों ब्राह्मणाबाद पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया उन दिनों जय सिंह फौजी जरूरियात के तहत बाहर गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो इस्लामी फौजें शहर का मुहासरा कर चुकी थी। जय सिंह ने मुसलमानों की रसद बंद करने की कोशिश की, लेकिन राजा मौका की क़यादत में एक दस्ते ने इस पर हमला किया तो वो शहर को अपने भाई गोपी के हवाले करके कश्मीर की तरफ निकल गया। चंद दिनों बाद शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। यहाँ राजा दार की बीवी लाडी गिरफ्तार हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज की इजाजत से इसके साथ शादी कर ली। अरूर की फतह। अरूर जो रोहड़ी से 5 मील के फासले पर वाक़या है, राजा दार की राजधानी और सिंध का अहम तरीन मुकाम था। ब्राह्मणाबाद की फतह के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने मुल्की इंतजाम के बारे में बहुत सी हदायत दी और साथ ही अरूर और मुल्तान फतह करने का हुक्म दिया। चनाचा मोहम्मद बिन कासिम की रहनुमाई में इस्लामी लश्कर अरूर पहुंचा। एक माह के बाद अहले कला सुलह पर आमादा हो गए और अरबों ने शहर पर कब्जा कर लिया। दाहर का बेटा गोपी किला छोड़कर भाग गया। मुल्तान की तरफ पेशकदमी। अरूर की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान की तरफ पेशकदमी की। रास्ते में कला बाबिया था जिस पर राजा दार का भतीजा किसका हुक्मरान था, जो राजा दार के कत्ल के बाद इस किले पर काबिज हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों से तहकीक की कि क्या वो वाकई दार के खानदान से है। इसके बाद कहा कि अगर मेरे पास आए तो मैं इसकी कदर अफजाई करूंगा। किसका को मालूम हुआ तो फौरन हाजिर खिदमत हुआ और इसे वजीर माल मुकर्रर कर दिया गया और कला फतह हो गया। इसके बाद इसकंदा पर हमला किया गया जो कमो पेश एक हफ्ते की मुजामत के बाद फतह हुआ। यहाँ के हाकिम सिंह राय भागकर सिक्का चले गए, जहाँ का हाकिम बजहरा का नवासा था, इसलिए वो अपने नाना से इंतकाम लेने के लिए लड़ा, लेकिन एक रात कले से भागकर मुल्तान की तरफ निकल गया और कला मुसलमानों के कब्जे में आ गया। 714 में मुल्तान की तस्खीर। मुल्तान सिंध का अहम सियासी, सकाफती और मजहबी मरकज था। यहाँ गुवर सिंह की हुकूमत थी जो बहुत मजबूत राजा समझा जाता था। इसने 2 रोज तक किले से बाहर निकलकर मुसलमानों का मुकाबला किया। सख्त जंग हुई जिसमें बहुत से अहम मुसलमान जर्नैल शहीद हो गए। इसके बाद वो किला बंद हो गया। इस बेआबो गया इलाके में मुसलमानों के लिए ज्यादा देर तक मुहासरा जारी रखना मुमकिन न था। इनके लश्कर में कहत पड़ गया, इसलिए उन्होंने भरपूर हमला करके शहर पर कब्जा करके कहत से निजात पाने का मंसूबा बनाया। बहुत जोरदार मार्के हुए। बिलाखिर मुसलमानों को उस नाले का इल्म हो गया जो अहले शहर को पानी मुहैया करता था। उन्होंने इसका रुख बदल दिया। अहले शहर प्यासे मरने लगे और मजबूरन किले से बाहर निकल कर लड़े, लेकिन शिकस्त खाकर फिर किले में बंद हो गए। इत्तफाकन एक कैदी से मुसलमानों को किले के फसील का कमजोर हिस्सा मालूम हो गया और 2-3 दिन की संगबारी से शहर की फसील टूट गई और मुसलमान किले में दाखिल हो गए। मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम को एक मंदिर का महफूज खजाना हाथ लगा जो सैकड़ों मन सोने पर मुश्तमिल था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस खजाने से वो वादा पूरा किया जो हज्जाज ने खलीफा वलीद से किया था कि वो महम पर खर्च होने वाली तमाम रकम का दुगना शाही खजाने में दाखिल कर देगा। मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की आखिरी काबिले जिक्र फतह थी। इसके बाद उन्होंने कुछ सरहदी किले मजीद फतह किए। इंतजाम सल्तनत को दुरुस्त किया। वो चाहते थे कि वो कन्नौज पर भी हमला करें। इस मकसद के लिए उन्होंने एक लश्कर रवाना किया जो उदयपुर तक गया। खुद वो कश्मीर की तरफ बढ़े, लेकिन इस दौरान में हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया। नेज़ खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक भी चल बसे और नए खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलक ने मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ्तारी और वापसी के अहकाम साजिर कर दिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं या फिर हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपनी कीमती तजावीज़ व आरा से ज़रूर नवाजिए।